Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, how are you? This is a year of great opportunities. Some of you may be struggling for years to get the job. Today morning, I got a message, sir. I wake up with heavy head. People ask me when you will get the job. Some are settled as a teacher, others are revenue officer. I am still preparing for bank exams. When people ask you this question, obviously it hurts you. But the important thing is, should we continue our efforts till we achieve, or we get disheartened in between? Now, this year, you are having a golden chance. Vacancies in IBPS PO is higher than last year. Vacancies in IBPS clerk will also be higher than last year. That means if you have missed last year, this year you are front runner. You already have some base. You have to build over it. And if you remain cool and calm and centered towards your goal, you can achieve it. Every year, the mix of people, those get selection, are either freshers or struggler for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 years even. That means everyone has a chance to get the job in every selection. The moment number of vacancies increase, it improves our chance of being selected. So sometimes what happens is I am preparing for an exam. The moment I give up, I find that the people, those were less capable than me, are also selected. And then I repent why I quit in between. So moral of this story is continue your efforts. The only thing is you have to improve direction of your efforts. Most people are hard worker, but sometimes their efforts in wrong direction. Why? They are confused. They are consulting so many people. They are following so many techniques. Whereas the method of success is simple, straightforward. It is not complicated as people present it. Some people, they only talk about toppers. You need not be topper to get the job. If there are 10,000 vacancies, the candidate who secure position number 1 and position number 10,000th, they are at par. Both will get the same salary. So don't be swayed away by the people those are projecting themselves as toppers. They are not real success story. Real success story is selection, getting a job, and that's why I prefer to put success story of those candidates. Those are strugglers like you and ultimately able to get the job. Toppers does not inspire us. Why? Because there is not only one post for which we are aspiring. I have to top an examination if there is only one post. I need not be topper. I have to come in the group of people, those are ultimately shortlisted for a job. That is important. So never underestimate yourself. Because when you see the video of a topper, you feel shivers. I am not putting so many of hours. I am not doing these things. Don't be swayed away. Everyone has different capabilities. Somebody may be good in English. Somebody may be good in quant. Somebody may be good in reasoning.
Another person may be having sea of knowledge in general awareness. So everybody has some forte. And at the same time, everybody has some weaknesses. These are called the weak areas. So the real preparation is to understand ourselves, to understand our weak areas, and spending most of time on those weak areas, convert these weak areas into strong areas, and gradually you will find you are improving. And the moment you are able to improve 1, 2, 3, 4, 5 marks, you become successful. Because last time you might have missed the bus by half mark, 1 mark, 2 mark, 3 marks, 4 marks, 5 marks. These can easily be breached. And become deaf for the people those are cursing you. Become deaf for the people those are teasing you. Don't bother. Have single-minded approach that I will succeed, I will succeed, I can, I will. That should be your spirit. Don't bother about unwanted people. They are not friends of you. They are not relatives of you. The teasers, you should maintain safe distance from them. But don't deviate from your path. Remain on your path. I am making videos on daily basis. You can learn a lesson. Despite this age, I never miss the day when I put a video. And I am not bothered how many people are watching that video. Some of my videos are only watched by only 1,000 people. Another video is watched by 60,000 people. There may be some video it is watched by only 5,000 people. But whatever I feel correct, I continue to do that because that is in your interest. If daily scheduled video is required, I daily put it. Although this is not seen by many people, I know. But I know the people, those are seeing it. They are lucky people. They are the real people, those will get the success because they understand the importance of hard work. So we have to do our work. We should not think about result. We should do our effort. I wake up early in the morning. I start my day with making videos to provide you guidance. Whether people see it or they are not watching it, I am not bothered. But by doing this effort today, this is one of the most admired channel on YouTube. We have 250,000 subscribers and daily the total views are above 1 lakh. More than 6 crore views, 6.48 crore views are there. So consistency makes you successful. I am one man army. I am making a lot of efforts. I can lead a relaxed life. I need not do this thing. But I am very clear about my mission of helping 1 lakh youth to get the job. I will accomplish it. And that is the determination. And once you are determined, you will definitely succeed. More than 18,600 people are there as subscribers. Those are already working in banking, insurance, other sectors. I am getting messages, sir, I am getting married. I got engaged. I am blessed with a son. I am blessed with a daughter. Now I have got promotion. Now I have bought a new car. Now I am buying a new house. How much happiness it gives. It is our extended family. So the right advice at right time always helps you. So God bless you. Don't feel let down. You are brave. You will win. I am with you. God bless you.
अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आज सुबह सुबह एक मैसेज आया कि सर सुबह हम बहुत ही बोझिल मन से उठते हैं, इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही है। हमारे साथ के लोगों को कोई टीचर बन गया है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है। अब वो पूछते हैं कब तक तैयारी करते रहोगे, क्या नहीं छोड़ोगे इस तैयारी को? अब इसका क्या सलूशन है? इसका क्या सलूशन है? अब ये जो साल है, ये साल है संभावनाओं का। ये साल है जिस साल वैकेंसीज ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, IBPS क्लर्क में भी, IBPS ऑफिसर में भी, और कैंडिडेट है पिछले साल से कम। इसका क्या मतलब है? इस साल अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी पिछले साल के मुकाबले, एज फार एज IBPS इज कंसर्न्ड। तो अभी तक तो मैं लगा हुआ हूं, आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, और जब मौका है नौकरी मिलने का मैं पिछड़ जाऊं। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं है। अब आप अपनी नौकरी के बिल्कुल नजदीक है, आपको रेस में बने रहना है, और ऐसे बने रहना है कि नौकरी लेके ही रहेंगे, नौकरी मिलेगी। तो जो व्यक्ति कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित है, वो सफल जरूर होगा। कोई पहले होगा, कोई बाद में होगा, मगर सफल जरूर होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब होता क्या है कि हर आदमी को ईश्वर ने कुछ शक्तियां बख्शी हैं। कोई आदमी इंग्लिश में स्ट्रांग है, कोई क्वांट में स्ट्रांग है, कोई रीजनिंग में स्ट्रांग है, कोई जनरल अवेयरनेस में भंडार है नॉलेज का। कमी किसी में नहीं है, पर हर व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट नहीं है, ये सच्चाई है। हमें टॉपर नहीं बनना है। 10,000 वैकेंसी है, मेरा 1 रैंक आए, 10,000वां रैंक आए, सेम सैलरी मिलनी है। ये जो लोग इल्यूजन में रहते हैं मुझे टॉपर बनना है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। कई लोग सक्सेस स्टोरी टॉपर्स की ही देते हैं, उसी को सुनते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। हम इस चैनल पे उन लोगों की सक्सेस स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं जो एवरेज लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, क्योंकि टॉप करना लक्ष्य नहीं है, नौकरी पाना लक्ष्य है। रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 10,000, IBPS क्लर्क दोनों को नौकरी मिल जाएगी। SBI जूनियर एसोसिएट में जिसका रैंक नंबर 1 है, रैंक नंबर 5,000 है, दोनों SBI जूनियर एसोसिएट बन चुके हैं। जिनका उनसे नीचे है वो वेट लिस्ट में बन जाएंगे। तो ये हमें टॉपरों की स्टोरियां सुन के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें टॉप करने की कोशिश भी नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें अपने को समझना है। हर व्यक्ति डिफरेंट है। हमें यह समझना है मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। मान लो मैं क्वांट में स्ट्रांग हूं, रीजनिंग में स्ट्रांग हूं, मैं उसको बैक बर्नर पे डाल दूंगा। मैं इंग्लिश में वीक हूं, मैं जीके में वीक हूं, इसको मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा, डरूंगा नहीं। कई लोग कहते हैं सर इंग्लिश ना हो मैं पास हो जाऊंगा। अरे क्यों डर रहे हो इंग्लिश से? उस बच्चे को देखो जो जिस जगह पर पैदा होता है, उसको कोई भाषा नहीं आती उससे पहले। अगर वो इंग्लैंड में पैदा होता है इंग्लिश ही बोलता है, फ्रांस में पैदा होता है फ्रेंच ही बोलता है, तमिलनाडु में पैदा होता है तमिल ही बोलता है, आंध्रा में पैदा होता है तेलुगु बोलता है, कर्नाटका में पैदा होता है कन्नड़ बोलता है, केरला में पैदा होता है मलयालम बोलता है, पंजाब में पैदा होता है पंजाबी बोलता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में पैदा होता है हिंदी बोलता है, गुजरात में पैदा होता है गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में पैदा होता है महाराष्ट्री बोलता है, गोवा में पैदा होता है गोवन भाषा बोलता है। जिस क्षेत्र में वो पैदा होता है, जम्मू कश्मीर में पैदा होता है हिंदी भी बोल सकता है उर्दू भी बोल सकता है।
तो जितनी भी भाषाएं हैं सब आ जाती हैं सब लोगों को। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ सब लोग प्रयास करते हैं वो भाषा सीखे, और जो उसके आसपास भाषा होती है वो सीख जाता है। ऐसे ही अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे उन लोगों के संपर्क में आना चाहिए जिनको इंग्लिश आती है, उनके साथ इंग्लिश में बात करूं, अपने आप इंग्लिश में बात करूं, अधिक से अधिक इंग्लिश चीजें पढूं, सुनूं, देखूं, आ जाएगी। कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप नहीं सीख सकते। डरना नहीं है, सीखना है। करंट अफेयर नहीं आती, करंट अफेयर पढ़े। बैंकिंग नहीं आती, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देखें। तो जो नहीं आता है वो सीखना है। अरिथमेटिक में वीक है, अरिथमेटिक पढ़े। पजल नहीं सॉल्व करनी आती, पजल सॉल्व करने के तरीके सीखें। तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढनी है, उस कमजोरी को दूर करना है, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से रह गए हैं तो इस साल तो आप अगर उस पर फोकस कर लेंगे जीत ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट है लक्ष्य की तरफ ध्यान बनाए रखना, उन लोगों को निग्लेक्ट करना जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ठीक है? तो कल एक मैं बड़ी अच्छी वीडियो चल रही थी, उसमें यही बात सामने आ रही थी कि हमें आगे चलना है, पीछे खींचने वालों की तो कमी नहीं है। ठीक है? तो हमें आगे बढ़ते रहना है। टांगे खींचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, और वो खींचेंगे ही, वो मजबूर हैं, वो हीन भावना से ग्रस्त है, वो बीमार है, उनको एक निगलेक्ट करिए। उनका काम है आपको नीचे दिखाना, पर आप नीचे मत देखिए। ऊंचा देखना आपका काम है, आगे देखना आपका काम है, अपने टारगेट को देखना आपका काम है। लोगों को भूल जाइए, लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो हीन भावना से ग्रस्त हैं। आप मत डरिए, आप सक्षम हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, आपके लिए सामने लाइव एग्जांपल है। 5 साल पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था, आज 5 साल अभी जनवरी में पूरे हो जाएंगे इस चैनल को, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं अपनी रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करता। सुबह उठता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, जो विषय मुझे अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। चाहे उसमें 1000 व्यू आए, 500 व्यू आए, 2000 व्यूज आए, 20,000 व्यूज आए, 70,000 व्यूज आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट। अगर मुझे लगता है ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं जरूर बनाऊंगा उसको। आपके लिए टाइम टेबल निहायत जरूरी है। कम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसी टाइम टेबल से जो लोग इसको देख रहे हैं उनको नौकरी मिलने वाली है। मैंने बनाना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता 500 लोगों ने देखा उस वीडियो को, 1000 लोगों ने देखा, 2000 लोगों ने देखा, 20,000 लोगों ने देखा, तारीफ लोगों ने की नहीं की, लोगों ने बुराई की नहीं की, मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं मुझे फर्क पड़ता? मुझे पता है मैं सही रास्ते पे हूं। आज ये चैनल मोस्ट एडमायर्ड चैनल है यूट्यूब पे। 2.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। 6 करोड़ 48 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 1 लाख से कम व्यू होते हैं। मेरे लिए सफिशिएंट है। मेरे लिए क्या जरूरी है? क्या अधिक से अधिक लोग इसको देख के फायदा उठा रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। मेरा उद्देश्य क्या है? 1 लाख नवयुवकों की मदद करना नौकरी पाने में। 18,600 से अधिक आज ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। आज वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। वो मुझे बताते हैं कि सर मेरी एंगेजमेंट हो गई है, सर मेरी शादी हो गई है, सर आई एम ब्लेस्ड विद सन, सर आई एम ब्लेस्ड विद डॉटर, आज मैंने नई कार खरीद ली है, आज अब मैं नया मकान खरीदने जा रहा हूं, अब मेरी प्रमोशन हो गई है। कितनी खुशी मिलती है। कितने लोगों के घरों में आप खुशी लाने का काम कर रहे हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज करे या तारीफ करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उस व्यक्ति को जिसके घर में मैं खुशी ले आया हूं। जब वो
अपनी वीडियो बना के भेजता है, अपना मैसेज भेजता है, अपना कमेंट डालता है, अपने घर में खुशियां मनाता है, वो मुझे फर्क पड़ता है। पर जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, मुझे अब्यूज कर देता है, मेरी टांग खींच लेता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी टांगें बहुत मजबूत हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा उस चीज से खुश होता हूं जो अच्छा हो रहा है, और मैं कभी परेशान नहीं हो रहा जो बुरा हो रहा है। वो तो होना ही है, बुरा भी होना है, अच्छा भी होना है, क्यों परेशान होना है। खुश रहना चाहिए अच्छी चीजों से, निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल अवश्य मिलेगा। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। जो आपको टीज कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो मानसिक रोगी है, ये मानिए। इग्नोर इट। आप सही हैं, आप कामयाब होंगे। आई कैन, आई विल। ठीक है, अब जीत के रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।